श्रीनगर में हरि सिंह हाई स्ट्रीट के पास आज दहशतगर्दों ने ग्रेनेड हमला किया। इस हमले में 5 अफराद जख्मी हुए। तमाम जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई गई है। इस हमले के बाद फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर में हालात को मामूल पर लाने के लिए रियासती इंतजामिया ने बड़ा फैसला किया है। वादी कश्मीर में अब पीर से पोस्ट पेड मोबाइल खदमात बहाल होंगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में लैंडलाइन खदमात पहले ही बहाल कर दी गई थी। अब पोस्ट पेड मोबाइल खदमात की बहाली से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। रोहित कंसल ने कहा कि पीर को 12 बजे दिन से तमाम पोस्ट पेड मोबाइल खदमात को बहाल कर दिया जाएगा। The situation in Jammu and Kashmir, a decision has now been taken to restore mobile phone facilities in the remaining areas of Jammu and Kashmir. More specifically, all post-paid mobile phones, irrespective of the telecom service provider, will stand restored and be functional from 12 noon on Monday, the 14th of October 2019. This will cover all 10 districts of Kashmir province. With this step, tourists will be able to visit the state without being handicapped by the lack of phone connectivity. Students can be in touch with parents while attending schools. Businessmen can be in touch with customers, transporters can contact clients, and contractors can be in touch with staff. The government urges businessmen, industrialists, traders, transporters, shopkeepers, hoteliers and contractors not to be frightened by any threats by terrorists and separatists and go about their normal activities. The government is firm in its resolve that the attempts of these disruptive elements will be foiled. The government thanks the people of Jammu and Kashmir for being cooperative and helping in maintain peace and public order. इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि वादी की सैर करने वाले सयाहों की सहूलत के लिए इंटरनेट खदमात भी मुहैया कराई जाएंगी। By restrictions were facilitated. Hajj Yatris were helped in their travels. 25 internet kiosks are operating in each district in the DC office to help students, contractors, and government departments to carry out their functions. Students have been using this facility to apply for exams, download admission cards, etc. This week, the travel advisory to tourists issued in August 2019 has been lifted. Tourists are welcome to visit the state and they will be facilitated for their visit. Internet facilities are being opened in tourist places to assist tourists wanting to access the internet. मौजूदा हालात का तस्करा करते हुए रोहित कंसल ने कहा कि रियासत के 99% इलाकों में कोई बंदिशें आयद नहीं है। उन्होंने कहा कि वादी में हालात बतदरीज मामूल पर लौट रहे हैं। The 16th of August, there has been a gradual removal of the restrictions that were imposed, and by the first week of September, most restrictions were removed. Barring 8 to 10 police stations, movement restrictions have now been completely removed. Over 99% of the area of Jammu and Kashmir has absolutely no restrictions on movement. पोस्ट पेड मोबाइल खदमात बहाल करने के फैसले का लोगों ने खैर मकदम किया है। इस मौके पर लोगों ने खासकर तलबा ने प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट खदमात भी जल्द बहाल करने की अपील की है। सबसे बड़ी खबर है कि फ़ोन खुल रहे हैं, मगर सुनने में आया है कि पोस्ट पेड ही खाली खुल रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रीपेड भी खुले, क्योंकि सबके पास पोस्ट पेड तो नहीं है और परेशानियों का सामना बहुत करना पड़ा हमें इन दिनों फ़ोन की वजह से, क्योंकि पता नहीं होता है, बीमार होता है कोई
कुछ होता है पता नहीं होता है। उतनी अच्छी खबर नहीं है क्योंकि मेरा मैट्रिक का एग्ज़ाम है, मुझे 10th का एग्ज़ाम है, तो पता है कि 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत टॉपिक्स होते हैं जो इंटरनेट से मिलते हैं, तो हर एक के पास पोस्ट पेड अवेलेबल नहीं है। वो लोग जो बहुत गरीब है उनके पास भी पोस्ट पेड है, तो इवन दे नीड इंटरनेट क्योंकि उनको भी पढ़ना है। तो मुझे लगता है एजुकेशन के लिए अगर एग्ज़ाम्स ले रहे हैं तो उसके लिए इंटरनेट की बहुत ज़रूरत है टू कवर अप मैनी पोर्शंस टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अब स्कूल भी इतने टाइम से बंद हुआ है तो कुछ समझने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है टू एक्सप्लेन थिंग्स, टू सी दी वीडियो लेक्चर। जी सर, ये बहुत अच्छी बात है जो कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यहीं पे पढ़ता हूँ, मैं ट्यूशन लेता हूँ और मैं एंट्रेंस की कोचिंग करता हूँ। जी सर, बहुत प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे भी होती है प्रॉब्लम सर। अगर हमें क्लासेस टाइम जो मेंटेन करना होता है क्लासेस के लिए, उसके लिए प्रॉब्लम होती है, मैसेज नहीं आ पाती है कब क्लासेस है, हमें पहले ही जाना पड़ता है, पहले मालूम करना पड़ता है कि ये क्लासेस कब होती है। और हमें आज रेगुलर क्लासेस भी उस तरह नहीं चल रही है जिस तरह चल रही थी। वादी कश्मीर में हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर लौट रहे हैं। श्रीनगर से बंदिशों को तो हटा ली गई हैं, लेकिन दफ़ा 144 अभी भी नाफिज है। हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। श्रीनगर में सुबह के वक्त बाजार खुल रहे हैं, सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदरफ्त भी हो रही है। कुलगाम में कारोबारी इदारे बंद रहने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहने से लोगों की मुश्किलात बरकरार हैं। ताहम सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदरफ्त जारी है। मवासलाती निज़ाम ठप रहने से भी लोग, खासकर तलबा और ताजर, परेशान हैं। ज़िले के सभी तहसील और सदर मकामात से किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं है। कस्बा पुलवामा में आज भी कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मअतल है, जिसकी वजह से कस्बा पुलवामा समेत पूरे ज़िले में मामूलात ज़िंदगी मुतासर है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए कस्बा पुलवामा के हसास मकामात पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। सरकार की जानिब से अगरचे तालीमी इदारों को ज़िले में खोल दिया गया है, ताहम तलबा की हाज़िरी न होने से तालीमी इदारे सुनसान ही नज़र आ रहे हैं। उधर त्राल में भी कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहीं, ताहम सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदरफ्त कुछ हद तक देखने को मिली। इसी दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल ने बताया कि त्राल में वुमेंस कॉलेज को मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसका क़याम अमल में लाया जाएगा। डिमांड थी कि हम यहाँ पर वुमेन कॉलेज होना चाहिए, कॉलेज फॉर द गर्ल्स, तो उसके लिए कोशिश की गई है। एंड हमें कहा गया था कि लैंड आइडेंटिफाई करने के लिए वो रिपोर्ट भी हमने भेजा है। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि वो त्राल के लिए, त्राल सब डिस्ट्रिक्ट के लिए वुमेन कॉलेज अप्रूव हुआ है। एंड मुझे लगता है फॉर्मल ऑर्डर शायद हमारे पास अभी नहीं पहुंचा, शायद पहुंचेगा जल्दी। लेकिन ये त्राल के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि जो बड़ी देरी डिमांड थी इनकी कि यहाँ पे वुमेन कॉलेज होना चाहिए, तो इंशाल्लाह जल्दी ही अमली सूरत होके यहाँ पे आपको त्राल के टाउन में ही आपको वुमेन कॉलेज इंशाल्लाह होगा। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में कल शहीद हुए नायक सुभाष थापा को आज जम्मू में खराज अक़ीदत पेश किया गया। पाकिस्तानी फौज की जानिब से सीज़ फायर माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए की गई फायरिंग में नायक सुभाष थापा जख्मी हो गए थे, जिन्हें फौजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, ताहम बाद में वो अपने जख्मों से जानबर न हो सके। शहीद फौजी जवान का ताल्लुक मगरबी बंगाल से था। बीजेपी के कश्मीर उमूर के तर्जुमान अश्विनी कुमार चरंगू ने सियाहत पर आयद एडवाइजरी को वापस लेने के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि इससे 2 महीने से बने नामसाइद हालात में सुधार आएगा। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चरंगू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर में नई तारीख रकम होगी और जम्मू कश्मीर की तरक्की और अमन की फ़ज़ा कायम करने पर ख़ास ध्यान दिया जाएगा। अश्विनी कुमार चरंगू ने कहा कि मंदिरों की तजदीद व मरम्मत हुकूमत के एजेंडे में सर फहरिस्त रहेगा। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबतकारी से पहले ये कदम ज़रूरी है। चरंगू ने इस मौके पर मज़ीद कई समाजी और सकाफ़ती मसाइल का जिक्र किया। हम सरकार को धन्यवाद करते हैं, साधुवाद देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने मीडिया एडवाइजरी जो पहले इशू की थी उसको विड्रा किया है। इट विल ओपन गेट्स एंड it will create a new atmosphere in the Kashmir Valley.
साथ में ही हम सरकार से अपील करते हैं कि समय आ गया है कि वे अब मोबाइल डाटा के बगैर मोबाइल सर्विसेज को यहाँ पर अलाउ करें, और साथ में जितने भी मीडिया हाउसेज हैं उन मीडिया हाउसेज को जो डेडिकेटेड लैंडलाइन है उसमें इंटरनेट की सुविधा भी प्रदान करें। साथ में ही हमारा यह मानना है कि जिस तरह से पिछले 2 महीनों में जम्मू कश्मीर के हालात बने हैं, पर्टिकुलरली कश्मीर वैली में बने हैं, बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर जानो माल की रक्षा करने के लिए जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई की हैं, इट वाज एंड इट इज ए फेयर प्राइस, रादर ए जस्ट प्राइस टू सेव ह्यूमन लाइव्स इन द कश्मीर वैली। हमारा ये मानना है कि वो समय जिसमें टेररिज्म या अलगाववाद या वायलेंस मेन स्ट्रीम था, वो समय चला गया है। अब यहाँ पर मेन कोर्स जो है वो केवल और केवल भारतीयता और इंडियननेस है। अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो कॉन्फ्रेंस कोची में हो रही है, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट हो और उसके लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हो, और उसका सबसे बड़ा एक इशू है टूरिज्म। वी वांट टूरिज्म टू बी एनहांस्ड इन द कश्मीर वैली। ये 50,000 नौकरियां जो हैं उसके लिए जो एडवर्टीजमेंट है वो इन्हीं 2 महीनों में इमीडिएटली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी वो काम शुरू हो जाए, क्योंकि कोई बात हमने 2 महीने पहले फॉर एग्जाम्पल कही है, अब उसको इम्प्लीमेंट करने में भी आपको 6 महीने लग जाएंगे। जिसको फायदा पहुंचना है उसको एक्चुअली ये 1 साल के बाद फायदा पहुंच, जब फायदे की बात आएगी दुर्भाग्य से तब तक क्या होगा, वो ओवरेज हो जाएगा। सो टाइम फैक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। Whatever announcement is to be made today, it has to be implemented within a month time. मैं मीडिया से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, सरकार जो भी अपना काम कहेगी हमने ये करना है, आप पीछे लग जाओ। आपने जो ये कहा था ये इंप्लीमेंट कब होगा। वादी कश्मीर से जम्मू और दीगर रियासतों को सेब की बरामदात तेजी से जारी है। शरपसंद अनासर की जानिब से धमकियों के बावजूद रोजाना बड़ी तादाद में सेब के ट्रक जम्मू की फ्रूट मंडी पहुंच रहे हैं। पेश है कोमल सिंह की ये रिपोर्ट। जम्मू फ्रूट मंडी की इन तस्वीर से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर मेवा कारोबार हस्बे मामूल चल रहा है। मुल्क मुखालिफ और शरपसंद अनासर की जानिब से मिल रही धमकियों की परवाह किए बगैर मेवा काश्तकार अपनी सेब की पैदावार फ्रूट मंडी में फरोख्त कर रहे हैं। मेवा काश्तकारों का कहना है कि इन्हें दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि मेवा उतारने और लोड करने के लिए मजदूर दस्तयाब नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वो किसी न किसी तरह अपनी सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। 40 साल से बिजनेस करते हैं, सेब का काम करते हैं 40 साल से। गुरवेर भी हमारा खुद का माल बनता है कश्मीर में, लेकिन ऐसी हालत कभी नहीं देखा 40 साल में जैसी इस साल की हालत है। जब हम पहले उधर से काजीगुंड या अनंतनाग से गाड़ी भरते थे तो रातों रात 2-4 घंटे में 8-10 घंटे में जम्मू पहुंच जाते थे। आज हम पिछले सोमवार को निकला काजीगुंड से और गाड़ियों को काजीगुंड में ही रुका दिया है। आगे रास्ता भगवान जानता, आगे ठीक था या ख़राब था, तो 4 दिन के बाद काजीगुंड में ही 4 दिन रुकना पड़ा। 4 दिन के बाद जब तक यहाँ जो हमारा सेकंड माल होता ना, दूसरा ग्रेड का माल, वो ख़राब हो जाता है। यहाँ आते आते माल बिक रहा है मंडी में, जम्मू में मंडी माल अच्छी तरह ये सपोर्ट कर रही है, माल बिक रहा है, इधर से आगे भी जा रहा है यहाँ से माल। मगर गाड़ियाँ पहले एक दिन में गाड़ी मतलब दिवाली की सीज़न में एक ही दिन में गाड़ी निकलती थी। आजकल जो गाड़ियाँ हम लांग की लगाते थे वो 2 दिन में हम गाड़ियाँ पूरी करते हैं। जम्मू फ्रूट मंडी के ताजिरों का कहना है कि रोजाना मेवों से लदे ट्रक मंडी पहुंच रहे हैं और कारोबार मामूल के मुताबिक चल रहा है। ताहम इन्होंने कहा कि मवासिलाती निज़ाम ठप रहने से तिजारती सरगर्मियाँ मुतासिर हुई हैं। माल एज यूजुअल रेगुलर जितना आना चाहिए उतना आ रहा है, मतलब कंपैरिजन टू लास्ट ईयर माल थोड़ा सा कम है, बस ज़्यादा नहीं। और लंबा सीज़न खिंच जाएगा, माल कम होना ये नहीं है कि वहाँ माल ज़्यादा ख़राब हो गया या वहाँ माल रुक जाएगा, माल आएगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा लंबा सीज़न। वहीं महकमे हॉर्टिकल्चर के हुक्काम का कहना है कि तवक्को के मुताबिक ही वादी से सेब की बरामद की जा रही है। इस साल प्रोडक्शन भी ज़्यादा है पिछले साल से। इस साल बारिशें भी हुई, बर्फ़बारी भी अच्छी हुई, जो फ्रूट के लिए अच्छा है। और मैं मानता हूं कि 5 से 10% इस साल प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। पिछले साल अगर हम मान के लेंगे कि 22 लाख मीट्रिक टन है, इस साल ये 23-24 लाख मीट्रिक टन होगा। और पिछले साल से अच्छा रेट
और अच्छी तरह से एक्सपोर्ट जा रहा है, कहीं रुका नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें सरकार हर लेवल पर देख रही है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का इशू है या चाहे और कोई प्रोक्योरमेंट का इशू है, मार्केटिंग का इशू है, हर चीज़ को देख के उसको प्लग कर रही है। बीच में हुआ कुछ खदशा तो उसी लिए उस वक्त इंटरवीन किया सरकार ने और MIS इंट्रोड्यूस किया, जिसमें नेफेड को भी इन्वॉल्व किया गया ताकि कोई डिस्ट्रेस सेल ना हो, कोई ऐसा कोई आंसर ना आए जो इस ग्रोवर का एक्सप्लॉइट करे। इस वजह से सरकार ने इंटरवीन किया और बेस्ट रेन्यूमरेटर प्राइसेस जो भी हैं MSP में वो प्रोवाइड की। अब जबकि हुकूमत ने पीर से वादी में पोस्ट पेड मोबाइल खिदमात बहाल करने का फैसला किया है, इस फैसले के तनाजुर में उम्मीद की जा रही है कि तिजारती सरगर्मियों में भी मजीद इजाफा होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से कोमल सिंह की रिपोर्ट। महकमे हायर एजुकेशन की जानब से वुमेंस कॉलेज श्रीनगर में एक अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मौके पर यूनिवर्सिटी की जानब से मुनक्किद किए जाने वाले मुख्तलिफ इम्तहानात, नए कॉलेजों के लिए अराजी का मामला, नए कॉलेजों की तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने और डिजिटल क्लासरूम्स और दीगर कई मामलात को लेकर बात हुई। मीटिंग में कश्मीर यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर इम्तहानात फारूक अहमद मीर, हायर एजुकेशन के डायरेक्टर मोहम्मद यासीन और वादी के तमाम प्रिंसिपल मौजूद थे। इस मौके पर सेक्रेटरी एजुकेशन ने कहा कि महकमा सही वक्त पर इम्तहानात मुनक्किद कराने के लिए कोशां है, जिससे तलबा का कीमती वक्त बच जाएगा। उन्होंने कहा कि नए कॉलेज कायम करने के लिए मजीद स्टाफ के लिए जल्द इश्तिहार जारी कर दिए जाएंगे। खोलने वाले हैं हम, क्योंकि अगले साल जो हमारे एडमिशन होना है, बच्चों की तादाद बढ़ेगी, तो उनके लिए एडिशनल कॉलेजेस हमने खोलने हैं। जो करंट हमारे पुराने कॉलेजेस हैं उसमें काफ़ी बच्चे तादाद में होते हैं, तो हमारे पास इतना क्लास नहीं है नंबर्स जिसमें वो सारे बच्चे अकोमोडेट हो पाते। तो हमने नए जो कॉलेज शुरुआत करवाई है नई गवर्नमेंट ने हमारे इसमें, तो उसको हमने फंक्शनल बनाने के लिए आज मीटिंग ली है कि उसको जो फरवरी में एडमिशन होंगी उसके लिए क्लास भी पूरी हो, लेबॉर्ट्री वर्क भी पूरा हो, ताकि एडमिशन अच्छी तरह से हो और कुछ बच्चे हमारे जो बाकी नए कॉलेज हैं उसमें एडमिशन ले सकें और नए जो तादाद हमारे पास बढ़ेगी वो अकोमोडेट हो सके। 2000 के करीब पोस्टों का प्रपोजल बनाए बैठे हैं कि जिसका हम सैंक्शन मांग रहे हैं गवर्नमेंट से। अभी तक 200 पोस्टें अभी इन्होंने रिसेंटली सैंक्शन हो गई हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल आ गया है, तो 200 पोस्टें तो अभी हम फिल करना शुरू कर देंगे। पर उसके जब तक ये पोस्टें फिल होती हैं या नई पोस्टें हमारे पास आती हैं, तब तक हम अपना एकेडमिक एरिया में बच्चों को ले लेते हैं, प्रोफेसर्स को ले लेते हैं और वो हमारा काम चलता है एकेडमिक ईयर का। तो उनकी एकेडमिक एरिया में जो हमारे पास प्रोफेसर आते हैं एकेडमिक अरेंजमेंट पे, उसकी वजह से हमारा क्लास वर्क और जो बाकी लेबॉर्ट्री वर्क है वो पूरा हो पाता है। कश्मीर में स्कूल और कॉलेज खोलने के बाद अब सरकार यहां पर इम्तिहान कराने के लिए कमर बस्ता हो चुकी है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि पुरसुकून तरीके से इम्तिहानात के इनेकाद के लिए हर मुमकिन इंतजाम किए जाएंगे। ऐसे रहे वैली में कि हमारे कॉलेज पूरे फंक्शन नहीं हो पाए और अब हमने जो कॉलेज दोबारा रिज्यूम करवाया है स्टडी को इसको, तो कई बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ लोग क्लास अटेंड करना चाहते हैं, कुछ लोग स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, उनको सबको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है। और साथ में हमने तय किया है कि लास्ट वीक ऑफ जो अक्टूबर हमारा है, इसमें हम एग्ज़ाम लेना शुरू कर देंगे। उन पेपर्स का जो पेपर अधूरे हो चुके थे, अधूरे होने वाले हैं, और जो क्लास अभी नहीं ले पाए थे हम उसका भी हम ले लेंगे। जैसे हमारा 4th सेमेस्टर जो चल रहा था उसके पेंडिंग पेपर का हम आज लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हम डेट आज निकाल रहे हैं उसका, कश्मीर यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली निकालेगी, उसमें हम ले लेंगे, कंप्लीट करेंगे एग्जामिनेशन। और जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन थे उसको भी हम लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में फिनिश करने का सोच रहे हैं एग्जामिनेशन। इस तरह जो हमारे क्लस्टर यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं उसमें बीटेक का जो कोर्स है 3rd सेमेस्टर का, वो भी हम फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में टेस्ट ले लेंगे। और जो बाकी उनके अपने पीजी प्रोग्राम है उनका 4th सेमेस्टर का, वो भी हम फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में ले लेंगे। और जो बाकी क्लास वर्क होना था उसका स्टडी मटेरियल बच्चे ले रहे हैं, उनका एग्जाम रेगुलर अपने शेड्यूल से दिसंबर के महीने में होता था, वो अभी भी होगा दिसंबर महीने में। कि बच्चों का अगर हमने एग्ज़ाम टाइम से ना लिया तो उनका एकेडमिक ईयर उनको ख़राब हो जाएगा। उनका 6 महीने से ज़्यादा टाइम अगर हो गया एक सेमेस्टर में तो वो 6 महीने उनको वापस नहीं मिलेंगे, ये उनके कैरियर के 6 महीने ज़ाया हो जाएंगे। हमारी इल्तिजा है बच्चों से कि वो अपने प्रिपेयर करें एग्जामिनेशन को, अपने एकेडमिक कैरियर को ज़ाया ना होने दें। हमारी कोशिश यही है कि ये सिर्फ बच्चों के फेवर में हम उनका ये मीटिंग ले रहे हैं कि बच्चों से इल्तिजा है, उनके पेरेंट्स से इल्तिजा है, किसी भी तरह से वो बच्चों को कॉलेज तक भेजें और वहाँ पे स्टडी मटेरियल हासिल करें और अपने एग्ज़ाम की जो डेट है उसमें हाजिर हों, ताकि उनका अपना कैरियर किसी तरह ज़ाया ना हो। जहाँ तक यूनिवर्सिटी के पीजी एग्ज़ाम्स का ताल्लुक़ है वो हम टाइम पर कर रहे हैं। हमारे यहाँ 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम पेंडिंग था और उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स में एग्ज़ाम हुआ था तो वो पोस्टपोन करना पड़ा, और कुछ डिपार्टमेंट्स में भी एग्ज़ाम करना बाकी था।
तो लिहाजा कुल मिला के हमने यूनिवर्सिटी लेवल पर भी ये डिसीजन लिया है कि जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं वो हम अक्टूबर और नवंबर में तमाम कंक्लूड करने जा रहे हैं। और बच्चों का हम चाहते हैं कि बच्चों का साल ज़ाया न हो, बच्चों का कैरियर जो है किसी तरह से उसमें आँच ना आ जाए। और चूँकि पीजी के बच्चे या तो फिर नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं या आगे एडमिशन्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो इस वजह से भी हमने जो है वार फुटिंग पर ये फैसला लिया है कि 4th सेमेस्टर का जो आउटगोइंग स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम कर लेंगे और उसके साथ साथ जो हमारा 2nd सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी है जो ड्यू हुआ है वो भी टाइम पर ही होगा। तो कुल मिला के हमारे तमाम एग्ज़ाम्स एज़ पर शेड्यूल होंगे, बच्चों को किसी किस्म की कोई खुदा न खास्ता परेशानी नहीं होगी। देखिए, मैंने पास्ट में भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए हैं, चाहे स्टेट लेवल के वो एग्ज़ाम्स थे या यूनिवर्सिटी लेवल के या नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स थे। तो मेरा अनुभव यही मुझे कहता है कि जब भी एग्ज़ाम्स हुए बच्चों ने भरपूर उसमें पार्टिसिपेशन किया, बच्चों ने ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट खुद ही किया। कहीं कहीं थोड़ी सी इनकन्वीनियंस भी हो जाती है, वो हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने कैरियर के लिए बच्चों ने ट्रांसपोर्ट कहीं से भी लाया, चाहे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो या अपना कोई ट्रांसपोर्ट हो या कहीं गाड़ी हायर करके। बहरहाल उन्होंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि उनका एग्ज़ाम टाइम पर हो और एग्ज़ाम में वो हमेशा तकरीबन मुझे लग रहा है कि 98-99% अटेंडेंस दे के ही उन्होंने आज तक एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट किया है। देखिए, अभी हमने जो है मेडिकल कॉलेज का एग्ज़ाम किया, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने मेडिकल कॉलेज का एग्ज़ाम किया, डेंटल कॉलेज का एग्ज़ाम किया, जिसमें गवर्नमेंट ने हमको सपोर्ट किया। गवर्नमेंट ने बच्चों को जम्मू से लाया, लेह करगिल से लाया, क्योंकि उसमें मेडिकल कॉलेज में या डेंटल कॉलेज में बाहर के जगहों से भी बच्चे आते हैं, तो उनका भी अरेंजमेंट किया और सभी बच्चों ने, यानी वहाँ हमारी अटेंडेंस 100% रही, सभी बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया। आज भी गवर्नमेंट हमको एश्योरेंस दे रही है कि बच्चों को लाने के लिए वो ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट कर लेंगे। तो उससे मुझे लग रहा है कि अगर कहीं किसी बच्चे को डिफ़िकल्टी आती अदरवाइज़ शायद अब नहीं आएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का भी इंतज़ाम गवर्नमेंट ने करके रखा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से जम्मू में एक म्यूजिकल इवेंट मुनक्किद किया गया। गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी इस इवेंट में शिरकत की। हारमोनी के नाम से मुनक्किदा इवेंट में जम्मू के उभरते गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। इस मौके पर ललित पंडित और विजेता पंडित ने इस इवेंट के इनकाद पर CCI की सताइश की। इतने सारे नाम हैं, इतने सारे गवर्नर जरूर बताना चाहूंगी कि सर ने उन्हें एज ए पुलिस ऑफिसर देखा है तो यार कैसी एनर्जी आती है। अभी तो गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, एवरीबॉडी, सत श्री अकाल। बारामूला के DDC डॉक्टर जे नीतू ने एक मीटिंग का इनकाद किया। इस मौके पर आने वाले ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया गया। इस मौके पर तमाम मुतल्लिक़ अफसरान मौजूद थे। जिले में 96 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, इनमें 4 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार दिए गए हैं। जिले में 26 पोलिंग मराकज़ पर वोटिंग होगी। जिला पुलवामा में होने वाले ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जिला पुलवामा में कल 9 ब्लॉकों में उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए थे, जिसमें 4 ब्लॉक्स में उम्मीदवार बिला मुकाबला ही कामयाब करार दिए गए, जबकि जिला पुलवामा में 5 ब्लॉकों में 24 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए अमले को तरबियत फराहम की जा रही है। पूरी हमारी तैयारियां जो हैं वो बिल्कुल ग्राउंड पर हम लोगों ने पूरा कर लिया है, उसका जायज़ा ले लिया है। हमारे यहाँ पर जो कंटेस्ट हो रहा है BDC इलेक्शन, वो कुल 5 ब्लॉकों में 11 कैंडिडेट्स हैं इन फ्रे। 4 हमारे ब्लॉक्स में अनकंटेस्टेड जो है उसमें हो गया है। तो जहाँ तक इंतज़ामिया का सवाल है, पोलिंग स्टाफ उनकी सभी की ड्यूटी लग गई है और उनकी ट्रेनिंग भी आज कंडक्ट यहाँ पर कराई जा रही है और अकॉर्डिंगली हमारे जो वोटर्स हैं सभी लोग को सेंसिटाइज़ किया गया है। मैं समझता हूँ किसी प्रकार की परेशानी BDC इलेक्शंस में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में नहीं रहेगी। कुपवाड़ा ज़िले में BDC इंतखाबात की तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है। ज़िले में 26 ब्लॉकों में 137 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए थे। इनमें से 130 उम्मीदवारों ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए, जबकि 7 उम्मीदवारों ने BJP की टिकट पर पर्चे नामजदगी दाखिल किया। 34 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी वापस लिए, जबकि लंगेट में एक उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गया। अब 24 ब्लॉकों में 102 उम्मीदवारों का मुकाबला होगा।
एसएसपी कुपवाड़ा श्री अंबारकर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि उम्मीदवारों के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। में एक डेवलपमेंटल प्रोसेस में ग्रास रूट पर एक स्टेक होल्डर्स खड़े करने में एक बहुत अहम रोल ये बीडीसी निभाने वाली है। इसके इलेक्शन के हवाले से बहुत अच्छे से पार्टिसिपेशन यहाँ पर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रहा है। सारे कैंडिडेट्स की सिक्योरिटी और ओवरऑल यहाँ की जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है ये पुख्ता की गई है, सबको अश्योर किया गया है और फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है। इस इलेक्शन के बहाने से हम लोगों तक बहुत डेवलपमेंट को जो है डोर स्टेप तक एक तरह से पहुंचा रहे हैं। इसमें पुलिस की तरफ से पूरा की तरह सहयोग है, पूरा कोऑपरेशन है और हम बड़े जोश के साथ में इस इलेक्शन में जो है इस समय जुटे हुए। पर हमें पूरा यकीन है कि ये बीडीसी इलेक्शन जो है बहुत सक्सेसफुल इलेक्शन साबित होगा और इंसिडेंट फ्री हम इसको करके दिखाएंगे। बडगाम के मागाम मेन मार्केट में गुज़श्ता शाम आग की एक हौलनाक वारदात में 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें पूरी तरह खाकस्तर हो गई। मागाम में मेरवार रोड पर मेन बाजार में रात 9:30 बजे अचानक एक दुकान से आग नमूदार हुई और कई दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। दुकानों में करोड़ों रुपए मालियत का साजो सामान जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। महकमा फायर सर्विस के अमले ने मकामी नौजवानों, पुलिस और आर्मी की मदद से आग पर काबू पा लिया। मागाम पुलिस के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। पुलिस इस मामले को लेकर एक केस भी दर्ज किया है। मुतासरीन ने हुकूमत से इमदाद की अपील की है। डीडीसी गांधरबल हशमत अली खान ने जिले के कई पोलिंग मराकज़ का दौरा किया। उन्होंने बीडीसी इंतखाबात के लिए किए गए तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया। याद रहे कि बीडीसी इंतखाबात के लिए जिला गांधरबल में 7 ब्लॉकों में 37 नामजदगियां हुई हैं। 24 अक्टूबर को पोलिंग होगी, उसी रोज वोटों की गिनती भी होगी। रवां साल जिला पुलवामा के बेशतर इलाकों में ज़ालाबारी होने से अब सेब की फसल स्केब नामी बीमारी की लपेट में आई है, जिससे जिला पुलवामा के कई इलाकों में सेब की क्वालिटी रवां साल मुतासर हुई है। अगरचे उस वक्त हुकूमत ने मेवा काश्तकारों को रिलीफ फराहम करने के वादे किए थे, ताहम आज तक मुतासरा मेवा काश्तकारों को इस हवाले से रिलीफ फराहम नहीं की गई है। जबकि जिला पुलवामा के कई इलाकों में मेवा काश्तकारों को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ा है। ताहम जिला पुलवामा इंतजामिया ने कहा कि जल्द ही इस सिलसिले में महकमे बागबानी से पूरी रिपोर्ट हासिल की जाएगी। के साथ उम्मीदें वाबस्ता थी कि इस साल फसल अच्छा निकलेगा, कीमत भी अच्छी तरह आएगी और तो लोग इस वजह से खुश थे। लेकिन जो ज़ालाबारी हुई, ज़ालाबारी की वजह से बहुत नुकसान हो गया। ये जो सेब हैं ये मतलब सेकंड क्लास बन गया और गिरान भी बहुत हो गया। गिरान का पहले खरीदार आता था, ऑटो वाले लेते थे, इस साल कोई ऑटो वाला नज़र नहीं आया, इसलिए उस वजह से भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा किसानों को। कर्ज़ में डूबे हैं, केसी वाले भी जो किसान क्रेडिट कार्ड है उनको भी कर्ज़ा है, दुकानदारों का कर्ज़ा है, खाद का, दवाई का वो बाकी है। इसी उम्मीद पर वो देते थे कि फसल अच्छा निकलेगा तो वो भी लेते थे। इस साल किसानों के पास अपने खाने पीने के लिए भी नहीं निकलेगा तो कर्जदार ऐसा ही रहेगा। जी देखिए, इसमें लास्ट ईयर से जैसे आप ही की जानिब से पता लगा है कि स्कैब कोई इस प्रकार की प्लांट ये जो अफेक्ट हुए हैं हमारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, उसका एक बार मुझे चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से इसका पूरा लेना पड़ेगा एक रिपोर्ट, उसके बाद ही मैं उसमें बता पाऊंगा कि किस प्रकार की हम लोग मदद कर सकते हैं अपने ऑर्चर्डिस्ट की। आर्मी की जानिब से साबिक फौजियों के लिए किश्तवाड़ में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खासी तादाद में साबिक फौजी मौजूद थे। मीटिंग में साबिक फौजियों के कई मसाइल पर बात हुई। आर्मी ब्रिगेडियर ने इस मौके पर साबिक फौजियों की मुल्क के तय के काम की सताश की। उन्होंने वीर नारियों में तोहफे तकसीम किए और साबिक फौजियों के अहल खाना को तमाम तरह की मदद करने का यकीन दिलाया। उनकी समस्याएं थी
उन समस्याओं का वो पूरा कोशिश करेंगे उनका निवारण करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे काफी दूर से लोग यहाँ पे आए थे और इस रैली में सम्मिलित हुए हैं और मुझे पूरी आशा है कि जो कमांडर साहब के सामने जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं लोगों ने, कमांडर साहब उन की जो समस्याएं हैं उन पर पूरा गौर करेंगे, उनका हल करने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर पहाड़ के मकाम पर ट्रैफिक निज़ाम में रुकावटों से लोगों को मुश्किलात का सामना है। कदीम शाहराह से ट्रैफिक की नक़्ल हरकत को इजाज़त देने के फैसले पर रामबन के अवाम ने इंतजामिया पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उनका कहना है कि तामीराती कंपनियों को खुली छूट दी गई है, वहीं अवाम को सड़क पर ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी और अवाम की हिफाजती इक़दामात के नाम पर किसी भी तरह की सहूलत नहीं मिल पा रही है और हर दिन डॉक्टरों, स्कूली बच्चों और मकामी अवाम को पुरखतर ब्रिज से गुजरने पर मजबूर किया जा रहा है। इस मामले पर जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने झूला ब्रिज को मजीद बेहतर बनाने के इक़दामात की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि झूला ब्रिज की तामीर के लिए महकमे PWD की जानिब से ठेकेदार को जिम्मेदारी दी गई है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे सुबह भी 1.5 घंटा लगा आने में। इस वक्त मैं वापस जा रहा हूँ, 1.5 घंटा लगा। इस वक्त तक मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ। हर एक को स्कूली बच्चों को प्रेगनेंट के लिए आई थी, कुछ छोटे बहुत बीमार हैं, इंजर्ड हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की ही लापरवाही है कि इतना लूज वे में काम हो रहा है कि कोई इसकी कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा है। ये अनसे पुल है, इस पे से 50 गाड़ियाँ एट ए टाइम गुजर रही हैं, लेकिन कोई देख ही नहीं रहा है। इस वक्त रामबन एक ऐसी जगह है जहाँ पे बिल्कुल भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है कि रामबन में बिल्कुल अपनी मन मर्जी से कंपनी वाले काम कर रहे हैं, कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे हैं जिससे आम आदमियों की लाइफ को खतरा हो रहा है। झूला ब्रिज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अनसेफ, तो जितनी भी वहाँ पे ट्रैफिक जो भी ले जा रहा है वो अपनी रिस्क पे ले जा रहा है, वो तो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। झूला ब्रिज इज लुक्ड आफ्टर बाय ग्रेफ, BRO एक ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उनका है, उनको ऑलरेडी हमने बोल दिया है टू इम्प्रूव द ब्रिज। हाउएवर दे आर फाइंडिंग सम डिफिकल्टीज इन इम्प्रूविंग द ब्रिज बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी उसको अनसेफ डिक्लेयर किया है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द रीजंस एग्जैक्टली व्हाई इट इज अनसेफ एंड जो उसको मजबूत करने के लिए फॉर द टाइम बीइंग अगर जरूरत पड़ेगी तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुद उस ब्रिज को ठीक कर दे। PWD हैज आई थिंक फाइनलाइज्ड द कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू ब्रिज। आई थिंक 49 करोड़ की लागत से वो नया ब्रिज बनना है मैत्रा और रामबन के बीच में। आई थिंक कॉन्ट्रैक्टर इज इन प्लेस और कॉन्ट्रैक्टर थोड़े ही दिनों बाद शायद उस पर काम शुरू करेगा, बट इट इज अ लॉन्ग टर्म प्लान। आई थिंक ब्रिज बनना आपको पता है प्रोबेबली टेक 2 to 3 years मिनिमम। टिल दैट टाइम वी हैव द सस्पेंशन ब्रिज और उसकी स्ट्रेंथनिंग के ऊपर हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। महकमे PHE में काम कर रहे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स, ITI वर्कर्स और नीड बेस्ड वर्कर्स का कहना है कि उन्हें पिछले 6 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली हैं, जिसकी वजह से उनके अहल खाना फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। यूनियन के चेयरमैन मीर तारक मामपुरी ने गवर्नर इंतजामिया से इन मुलाजमों की तनख्वाह गुज़ार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नामसाइद हालात में इन मुलाजमीन ने लोगों तक पीने का साफ पानी पहुँचाने में कलीद रोल अदा किया है। मसाइद हालात में जिस चीज़ से आप लोग भी खुद खूबी वाकिफ़ है कि इन हालात में ना तो कहीं टेलीकम्युनिकेशन था ना कुछ था, तो जो हमारे कैजुअल लेबर्स, ITI वर्कर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स थे, इन्होंने इन हालात में भी लोगों तक पीने का साफ पानी पहुंचाया। और ऑनरेबल गवर्नर से हम मुद्दबाना गुजारिश करते हैं कि ये फाका कशी के शिकार है और इन कैजुअल लेबर, ITI वर्कर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स जो हैं इनके हक में वेजेस वागुजार किया जाए। पंजाब में हाई अलर्ट के तनाजुर में कठुआ में भी तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। पंजाब की सरहद के करीब कठुआ में वाक़ई गांव पंडोरी में सर्च ऑपरेशन चला गया। डिप्टी SP मजीद महबूब ने बताया कि कुछ इनपुट मिलने के बाद फोर्सेस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए तलाशी कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि लोगों को खौफ में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस लोगों की हिफाजत पर मामूर है। कंबाइंड सर्च ऑपरेशन चलाया टू सेंसिटाइज द एरिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से एक इनपुट आ रही थी और काफ़ी दिनों से ये हमें पंजाब पुलिस ने भी सेंसिटाइज़ किया है अपना एरिया। तो इन कोलैबोरेशन विद एंड टू सेंसिटाइज द प्लेस कि कोई एंटी नेशनल एलिमेंट या कोई ऐसा इस एरिया में अगर कोई आया है तो उसको ओवरकम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हमने ऑपरेशन चलाया है। लोगों में तो दहशत है, एक माहौल बना हुआ है, बट हमारी फोर्सेस, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस
पैरामिलिट्री फोर्सेस, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। मैसेज है लोगों को कि आप घबराएं ना, डरें ना, क्योंकि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी तैनात है, वो इस चीज़ को काउंटर कर रही हैं, तो हमारा साथ भी उनके साथ है। बस ये है कि अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन इनको मिले तो प्लीज़ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कठुआ के साथ ये शेयर करें। टाउन हॉल टंगमर्ग में डीसी बारामूला डॉक्टर जी नीतू की सदारत में मौसम सरमा की तैयारियों से मुतल्लिक जायज़ मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में फ़ौज के साथ साथ तमाम महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। साथ ही इस मीटिंग में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और LPG गैस के डीलर्स भी मौजूद रहे। मीटिंग में सयाहती मकाम गुलमर्ग, टंगमर्ग और दीगर इलाकों में मौसम सरमा को लेकर तमाम ज़रूरी अशिया को बहम रखने की हिदायत दी गई। ऑफिसर्स के साथ मीटिंग यही हुई कि हर सतह पे जो है तैयारियां मुकम्मल एडवांस में होनी चाहिए, चाहे वो स्नो क्लियरेंस हो, चाहे वो बिजली के हवाले से जो है वो मुकम्मल इंतजाम हो, या इसी तरीके से फूड एंड सप्लाईज़ में विंटर डंपिंग का इंतज़ाम करना हो। तो इसी हवाले से आज हमने फीडबैक ऑफिसर से लिया है। जहाँ जहाँ हमें लगा कि वहाँ इंतजाम जो है कि कोई कमी है, हमने डायरेक्शंस दी हुई है कि टाइम बाउंड मैनर में जो है सारे इंतजाम इन प्लेस होने चाहिए, ताकि लोगों को आने वाली सर्दियों के हवाले से किसी किस्म की कोई दिक्कत न हो। ज़िला पुलवामा में रवा बरस सेब की पैदावार में काफ़ी इजाफा हुआ है। ताहम मौसमी तब्दीलियों के सबब पुलवामा के बेशतर इलाकों में सेब की क्वालिटी काफ़ी मुतासर हुई है। इससे मेवा बागात में दरख्तों से बड़े पैमाने पर सेब गिर गए हैं। ज़िले में हर साल C ग्रेड और दरख्तों से गिरे हुए सेब के खरीदार बागात में ही आते थे। रवा बरस वादी में पैदाशुदा सूरत हाल के सबब खरीदार न आने से काश्तकारों को काफ़ी नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। हुकूमत की मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत जिले में कोई भी मंडी कायम नहीं की गई है। जो सालाबारी हुई, सालाबारी की वजह से बहुत नुकसान हो गया। ये जो सेब हैं ये मतलब सेकंड क्लास बन गया और गिरान भी बहुत हो गया। गिरान का पहले खरीदार आता था, ऑटो वाले लेते थे, इस साल कोई ऑटो वाला नज़र नहीं आया, इसलिए उस वजह से भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा किसानों को। यहाँ उसका कोई आता मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का यहाँ कोई आता पता नहीं। कर्ज में डूबे हैं, केसी वाले भी जो किसान क्रेडिट कार्ड है उनको भी कर्जा है, दुकानदारों का कर्जा है, खाद का, दवाई का, वो बाकी है। इसी उम्मीद पर वो देते थे कि फसल अच्छा निकलेगा। टंगमर्ग के चकफर सरेशी पहाड़ी इलाके में पीने के पानी की सख्त किल्लत पाई जा रही है। लोगों के मुताबिक पीने के पानी के हुसूल के लिए कई किलोमीटर तय करने पड़ते हैं। अगरचे यहाँ कई ट्यूबवेल हैं, लेकिन इनसे आलूदा गंदा पानी निकल रहा है। पीने का साफ पानी न होने की वजह से इस इलाके में लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। चकफर सरेशी के लोगों ने महकमे PHE के आला हुकाम से अपील की कि इस इलाके को पीने का पानी फराहम किया जाए। त्रेश बन अम खतर ज्यादा मजबूर क्या अदर खल कुन जुई नट रटान पत क्या करो पे कौकर पूत तरान त्रेश दादि अम खतर सठा मजबूर आब पकान ये कह पत वो तुम गरस 1.5 हथ हेर पे बोन तम ये आब तमें आई कहें पावर तो सह अंध हेथे अक डिमांड ये आब आ डिस्पेंसरी आसन अगर गवर्नमेंट ये वन पे दपान गवर्नमेंट हसा यूत करान गवर्नमेंट यूत मदद मगर अस तान